So hello and welcome all of you to our YouTube channel. My name is Nil Srivastava and today we are going to discuss the second part of resource and development. Now let's come to the where we had left it from here. Land use patterns in India. So land use patterns in India are depends upon physical factors like topography, climate, soil types and human factors such as population density, technological capability and culture and traditions etc. So let me explain you it. जो लैंड यूज पैटर्न्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे कैसी टोपोग्राफी है, कैसा क्लाइमेट है, कैसी सॉइल है वहाँ की, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की क्या है एंड व्हाट टेक्नोलॉजिकल्स आर यूज देयर एंड कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है उस जगह का. नाउ लेट्स मूव फर्दर here. Here you guys can see that this is a pie chart of land use categories from 1960 to 61 and here is a land use categories from 2014 to 15. So you can see that net sown area, this was 46.26% in 1960, but in 2014 it has been reduced to 45.5%. So you can see the drop in the percentage of net sown area in India, right? So what does it signify? It signifies that the sowing area is decreasing, right? But population is increasing. Sowing area is decrease हो रहा है, but population are increasing. So requirement of the people for food, for fodder, for crops, for vegetables, for fruits, all are increasing, but its productivity is very low. Its production is very low. Now, you can also see that area under non-agricultural use, this was 4.95%, means the land which was not used for agriculture, means ऐसी land जिसको agriculture के लिए use ना किया जाता हो, like roads, construction, buildings, bridges, means इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए, वो 4.95% से बढ़ के अप्रॉक्सीमेट डबल हो चुका है, 8.7% के आसपास आ चुका है. नाउ व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग, राइट? तो जब एग्रीकल्चर डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन क्रॉप्स का और सारी चीज़ों का डिक्रीज होता जाएगा, जो जनरल जो वहाँ की पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, और लाइक वहाँ के ट्री, वर्ड्स, ये सारी चीज़ें कम होती जाएंगी. तो इससे क्या होगा? ओवरऑल लोगों को लॉस होगा. किस चीज़ में लोगों को लॉस होगा? कि जैसे वो जो भी चीज़ डेवलप कर रहे थे अभी तक, जो क्रॉप्स डेवलप कर रहे थे, राइस, वीट, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं. मीन्स मैं पर्टिकुलरली राइस और वीट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ होल, कि जो हमारे पास एरिया है एग्रीकल्चर करने का वो कम होता जा रहा है. So it is affecting the population, it is affecting the prices of those crops, because जब डिमांड ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन कम होगा तो उससे इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मल पब्लिक पे, कि उस जो कॉस्ट हो जाएगी वो हाई होती चली जाएगी, और इससे जो पुअर और रिच का डिवाइड होगा वो बढ़ता चला जाएगा. नेक्स्ट we will talk about forest. Here you can see that forest percentage has been increased, but according to National Forest Policy 1952, you can see here, according to the National Forest Policy 1952, a country needs at least 33% of geographical area as its forest. But in India, you can see that, wait a minute, yeah. In India, you can see that forest is only 23.3%, which is very less for ecological sustainability. Like, why this criteria has been defined? Because it was considered essential for maintenance of ecological balance. To maintain ecological balance, we need to preserve 33% geographical area as forest, but we do not have that much percentage of forest on our land, and it will affect millions of people who live on that land and their livelihood as well.
Now here, total geographical area is 3.28 million square kilometer of India. So India has total 3.28 million square kilometer area. Land use data, however, we have only data of 93% of land, because rest 7% has not been surveyed yet, due to like the conflicted areas of Jammu and Kashmir, Pakistan and China, due to Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China. So we have not been surveyed that portions yet. Some parts of Assam has also not been surveyed yet. So we have only 93% data of our whole land of 3.28 million square kilometers. Now, one of the most important point is the land under permanent pastures. What is pasture? Pasture means ऐसी लैंड जहाँ पे कुछ भी ग्रो होता था तो उसे चारा, एज अ चारा यूज किया जाता था फॉर एनिमल्स लाइक गाय, भेड़, बकरियां, इन सब के लिए. और बट द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर, मतलब ऐसी लैंड जो वहाँ पे परमानेंट पेस्चर पे, मतलब परमानेंटली वहाँ पे कुछ ग्रो होता था और एनिमल्स आके ईट करते थे, हैज ऑल्सो डिक्रीज. वी हैव सीन इट हियर. You can see here, this is the permanent pasture and grazing land, this one, purple one. This was 4.71% to 3.3%. Now it is decreasing as well. So किसको affect होगा? It will affect the population, cattle population, because India has a huge cattle population and pasture lands are also increasing. Most of the other than the current fallow lands are either poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Means कुछ लैंड जो बची हुई है कल्टीवेशन के लिए, तो उनकी भी प्रोडक्टिविटी या फिर कह सकते हैं फर्टिलिटी इतनी कम है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा. तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो रही है, इसमें जो लोगों को पैसे लगाने पड़ रहे हैं कल्टीवेशन के लिए वो ज़्यादा लग रहे हैं, बट उससे जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है, बिकॉज द लैंड वॉज नॉट यूज प्रॉपरली एंड सस्टेनेबली, क्योंकि लैंड को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया गया, इस वजह से ऐसा हो रहा है. हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years. मीन्स ऐसी लैंड एक बार या 2 बार कल्टिवेट की जाती है 2 से 3 साल में. एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया, अगर इनको भी नेट जोन एरिया में इंक्लूड कर दिया जाए तो नेट जोन एरिया हमारा 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया, मतलब टोटल सर्वेड एरिया का 54% जो है वो नेट जोन एरिया में काउंट किया जाने लगेगा. द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. यू नो कि हर स्टेट में अलग अलग नेट जोन एरिया होगा. लाइक पंजाब हरियाणा में 80% है एंड 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार island. So it is a factual data, you can keep it in your mind and you can but you have to understand the concept behind it, that why these things are occurring, why these situations are emerging, because due to non-sustainable use of land and bad use of land, like sowing same crop every year will decrease its fertility and many more reasons are there. Now let's continue further. Forest area in the country, yeah, I have discussed it now, that we need 33% of geographical area as forest, but we have only 23.13%. Now, a part of land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland includes rocky, means where vegetation is not possible, arid means deserted and desert areas, and land put to other non-agricultural uses include roads, railway industry, I had told you already. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures, मतलब अगर आप appropriate measures नहीं लेते हो तो land की quality क्या है, खराब हो जाएगी and it will result in land degradation. So I think यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा. Now we will continue further. Now here we will be going to study land degradation and conservation measures. Like what is land degradation and how to conserve it, what measures we can take to conserve it, मतलब land degradation कैसे होता है, कैसे conserve करना है, क्या measures लिए जा सकते हैं. तो सबसे पहली बात, it occurs due to human activities.
सबसे पहली बात ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होता है फर्स्ट। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, लाइक सबसे पहली बात माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग मतलब जो कोयले की खदान वगैरह में खोदते हैं, ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा गाय भैंस चरा दिया कहीं पे और वो पूरी लैंड जो है एकदम से बंजर हो गई, एक तरह से पूरा पूरा उसमें से वहाँ के जितने पेस्चर थे सब खत्म हो गए, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन करवा देना, इससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सॉइल की फर्टिलिटी एज वेल एज सॉइल की स्ट्रेंथ पे, और ये दिस ऑल कंट्रीब्यूट टू लैंड डिग्रेडेशन। नाउ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening। मतलब जो कोल माइंस होती हैं, कोल माइंस को बाद में लीव कर दिया जाता है एक्सकेवेट करने के बाद, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो है डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग इन स्टेट्स लाइक, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पूरा एरिया ऐसे एकदम से बेकार रहता है, क्योंकि वहाँ पे पहले माइन किया गया, देन उसको ऐसे ही लेफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे वहाँ की लैंड डिग्रेड हो गई। कहाँ, जैसे लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि वहाँ का पूरा वेजिटेशन और जितने वहाँ पे जो कुछ भी लिविंग थिंग्स होती है सब खत्म कर दी जाती है, मतलब प्लांट्स एंड वहाँ के एनिमल्स को भी हटा दिया जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन होता है, प्लांट्स हट गए, वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो बिगड़ गया, और वहाँ के एनिमल्स को भी प्रॉब्लम हुई, और कुछ एनिमल्स वहाँ पे ही रह पाते होंगे तो वो मरने के कगार पे भी आ सकते हैं। तो इससे कई जो डायमेंशंस हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह का एक ब्रॉड माइंडसेट लेके हर क्वेश्चंस को करना है। लाइक कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, बहुत सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। नेक्स्ट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहाँ की लैंड जो है वो एरिड हो जाती है, मतलब बंजर हो जाती है, कह लो रेतीली, मतलब बंजर कह लो, है ना, क्योंकि वहाँ पे फिर कुछ ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि जितना भी कुछ ग्रो होता है तुरंत तुरंत सब एनिमल्स ओवर ग्रेज कर जाते हैं। नेक्स्ट, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरिगेशन की वजह से, मतलब पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पानी की वजह से कैसे, हाउ, तो ड्यू टू वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर लॉक कर जाता है, वाटर बहुत ज़्यादा मतलब पूरा लॉक कर देता है एरिया को, तो उससे क्या होता है, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी उस जगह की बढ़ जाती है, कह सकते हो एसिडिटी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट एक, मतलब सबसे पहले देखो मैं एकदम प्रॉपर लाइन से बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर ड्यू टू एक्सकेवेशन वर्क, ड्यू टू माइनिंग साइट्स। सेकेंड वन इज in Gujarat due to overgrazing, Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh due to irrigation, and in next one is the mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। Means आपने इंडस्ट्रीज देखी होंगी, लाइक ग्रेनाइट को वो लोग लाइक कट करते हैं, है ना, या फिर और कोई मिनरल्स है उसको कट कर रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं, तो कई कई मशीन्स यूज़ होती हैं, और उस मशीन्स को यूज़ करने में उस ग्रेनाइट या फिर जो भी लाइमस्टोन है या सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या कैल्साइट या जो कोई भी स्टोन है उसको प्रॉपर शेप देना, या फिर उसको जो भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से बहुत ज़्यादा कैल्शियम एज अ डस्ट निकलता है, एंड जा करके वो फर्टाइल लैंड है या फिर जैसी कोई भी लैंड है उसको जाके कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, एंड ड्यू टू not due to retardation of the infiltration of water into the soil, it settled down on the land। वो लैंड पे, लाइक ये हमारी लैंड है और यहाँ पे ये आकर के हमारे पास ये ऊपर जम गया, अब इसके अंदर वाटर जो है एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा मतलब मेन रीजंस, और एक और रीजन बचता है कि इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स, और यू कैन से द वेस्ट मटेरियल कमिंग आउट ऑफ द इंडस्ट्रीज विल डिप्लीट द लैंड एंड वाटर, इट कॉजेज वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन बोथ। राइट, नाउ ये सब इजी पॉइंट्स थे जो कि आप आराम से समझ सकते हो, बट मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा फ्रॉम माय पर्सनल सजेशन है मेरा कि
आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू शुड वेट अ मिनट, you should form your notes like this, like let me show you here. Yeah, here I have prepared land use of use patterns in India, physical factors, physical factors में क्या, like topography, climate and soil, human factors and technology, so they are the factors. Now what, why land degradation, क्यों होता है land degradation? Due to human activities. क्या क्या human activities हैं, like coal mining, deforestation, overgrazing. Next is mining sites left after excavation completed in Jammu, Jharkhand, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Cause deforestation, cause land degradation. Now, mineral processes, grinding limestone for cement industry. तो इस तरह से मैंने बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से ये पूरा अपना प्रिपेयर कर सकते हो, एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग, सो ये उसमें भी हेल्प करेगा, दोनों चीज़ में हेल्प हो जाएगी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इस तरह से करते हैं तो उनको एक ही पेज में पूरा पूरा एक क्रक्स मिल जाता है कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ना है, एंड देन उसके बाद मुझे बुक से कम पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा. तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट एफॉरेस्टेशन, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे किया है मैंने. तो फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट. लाइक अगर आप अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवा रहे हो तो प्रॉपरली तरीके से करवाओ, बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए, उनको और भी चीज़ें दे सकते हो खाने को खरीद के. प्लानिंग शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स. लाइक शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स मतलब जैसे अगर हमारे पास ये लैंड का एरिया है और ये पूरा एरिड है, मतलब सॉरी एरिड नहीं, फर्टाइल है या जो भी है, तो आप यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पे ट्रीज लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे इन सब वेट अ मिनट ऐसे भी लगा सकते हो, जिससे कि आपके जो लैंड है, मतलब यहाँ के जो एरिया है, ये बीच के एरिया, यहाँ पे आपकी क्रॉप्स रहेंगी, वेजिटेशन रहेंगे, या जो कुछ भी आप ग्रो करते हो वो वहाँ पे बोते हो. और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो विंड्स आएंगी बहुत तेज़, यहाँ से विंड्स आएंगी, वो आपकी क्रॉप्स को ख़राब नहीं करेंगी, वो आपकी लैंड को डिग्रेड नहीं करेंगी, ऊपर के जो इम्पोर्टेंट लेयर होती है उसको नहीं हटाएगी वहाँ से, तो ये फ़ायदा होता है. नेक्स्ट, स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. मतलब आप वहाँ पे जो बुशेस होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं घने घने, उन सब को भी वहाँ पे ग्रो कर सकते हो, जिससे कि आपके जो सैंड ड्यून्स जो है वो ना उड़ें. सैंड ड्यून्स मतलब थोड़ा सा नहीं आंधी टाइप से आती है और धूल मिट्टी वगैरह होती है, तो उन सबको भी स्टॉप करने के लिए आप थॉर्नी बुशेस लगा सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं इन सब चीज़ों में. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. अगर वेस्ट लैंड है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करें, ना कि उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें या फिर उसको वेस्ट होने दें, उसको कहीं और यूज़ किया जा सकता है ना. कंट्रोल माइनिंग. माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा काम सारे, है ना, क्योंकि वहाँ की लैंड नहीं डिप्लीट होगी, और भी कई फैक्टर्स होते हैं माइनिंग के. प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर ट्रीटमेंट. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इंडस्ट्री से डिस्चार्ज करते हो वेस्ट को, एफ्लुएंट्स को, तो उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज किया जाए. और ट्रीटमेंट से पहले डिस्चार्ज करने से वो क्या करेंगे, लैंड और वाटर को पॉल्यूट करेंगे, बट ट्रीटमेंट करने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे. सो इस तरह से, अगर एक सेकेंड, ये मैं दिखाना चाह रहा था बस कि अगर इस तरह से नोट्स को बनाते हो, नोट फॉर्मेशन करते हो, तो पढ़ना इजी हो जाएगा ना. बता देना जो भी सजेशंस रहे, अगर ऐसे करवाना है तो मैं ऐसे ही बना करके शेयर कर दिया करूँगा और उसी पे एक्सप्लेन किया करूँगा इंस्टेड ऑफ दिस होल पीडीएफ्स. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल एज अ रिसोर्स. तो सॉइल सबको पता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स because it is the medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth. तो क्योंकि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है एज वेल एज नॉन लिविंग को भी यही सपोर्ट करता है. तो सॉइल को हम लोग एक लिविंग सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. मतलब 1 सेंटीमीटर भी बनना है तो उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं. पहले कुछ रिलीफ फीचर्स होते हैं, पेरेंट रॉक होते हैं, बेड रॉक होते हैं, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, ये सब सारी चीज़ें उसको डिफाइन करती हैं. सो गाइज, नाउ हियर फ्रॉम वी हैव टू स्टडी अबाउट सॉइल एज अ रिसोर्स. Soil as a resource means we all know that soil is the biggest resource of everything, like either it is living organisms or non-living organisms, everything depends upon soil. So soil is a living system also.
मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, आइदर इट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग इज ऑन द सॉइल। मतलब लाइक आप कुछ भी देख रहे हो, हर चीज़ ज़मीन पे है, लाइक लैंड पे है ना। तो सॉइल एक बहुत बड़ा सोर्स है हम लोग के लिए, रिसोर्स है। इट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल। ये मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है एक सेंटीमीटर डेप्थ की सॉइल बनाने में, ठीक है। और क्या क्या उसमें लगते हैं, लाइक रिलीफ फीचर्स, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। बेड रॉक मतलब जिस रॉक से वो टूट टूट के बनी है वो सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, वहाँ का वेजिटेशन कैसा था, वहाँ के पास और कौन सी लाइफ थी, मतलब वहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट थे, वाटर था या एयर था या लैंड क्या था, टाइम कितना लगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। मैंने इसका एक छोटा सा बना रखा है, लाइक एक माइंड मैप टाइप का। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे। तो इसमें दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है सॉइल। लिविंग सिस्टम है, क्यों? क्योंकि इसको मिलियन ऑफ ईयर लगता है फॉर्म होने में, और फिर से वो फिर रॉक फॉर्म करता है, फिर टूटता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इसको लिविंग सिस्टम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इट फॉर्मेशन बता चुका हूँ अभी मैं। फिर केमिकल एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब सॉइल में हर चीज़ होती है, आइदर इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। चेंज इन टेम्परेचर, अब क्या क्या इफेक्ट करता है इसके फॉर्मेशन को? तो द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो। फिर रनिंग वाटर, वाटर मतलब वाटर जा रहा है कि नहीं जा रहा, कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। विंड्स, ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है सॉइल के फॉर्मेशन को। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल आती है, फिर सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल आता है, फिर अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। मतलब ये बेड रॉक है जो टूटा नहीं है, इसके ऊपर वाला टूट चुका है, फिर उस और ब्रेक होके टॉप सॉइल यहाँ बनी है। तो ये इस तरह से कुछ होता है। फिर ये टॉप सॉइल जाएगी कहीं एक जगह पे, और वो फिर से एक रॉक का फॉर्मेशन करती है विद अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पे आते हैं, तो इसका भी मैंने प्रिपेयर कर रखा है। आप अपनी बुक्स में पढ़ोगे तो जो कंटेंट यहाँ पे दिया है इतना ही एनफ है, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं दिया है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मैं थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखो, लाइक फॉरेस्ट सॉइल सबसे पहले आती है, एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहीं पे। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। कैसे आते हैं इसके सेडिमेंट्स? सेडिमेंट्स मतलब इस सॉइल में कौन कौन से जो मिनरल्स होते हैं वो सब कहाँ से आते हैं? वो इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू आके सबमिट हो जाते हैं। ऑल्सो कहाँ कहाँ? राजस्थान, गुजरात में भी पाई जाती है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा में भी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे रीजन है, देखो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो नदियां हैं, नदी क्या करती हैं, ये ऊपर से आती हैं, और जो मिनरल्स होती हैं, लाइक एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके हल्का सा बस। लाइक यहाँ से ये माउंटेन है, तो यहाँ से नदी आ रही है, तो ऊपर से जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, मतलब मिनरल्स होते हैं, उनको अपने साथ बहा के ले आती हैं। और ये ऐसे जब फ्लैट वाला रीजन आता है, ऐसे रीजन को बोलते हैं पीडमॉन्ट जोन, मतलब फ्लैट रीजन जो होता है। और यहाँ पे आके अपने कोर्स ग्रेन, मतलब जो खुरदुर, कोर्स मतलब खुरदुरा, तो जब इन ग्रेन्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, तो ये पीडमॉन्ट जोन में आके ग्रेन्स को डिपॉजिट कर देती हैं, और इस वाले एरिया को हम लोग अभी एक नाम है वो मैं बताता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देती हैं। और ये वाला जो रीजन होता है ये बहुत फर्टाइल होता है। सबसे पहले बड़े बड़े जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं, देन फिर छोटे और छोटे छोटे होते जाते हैं। लेट मी इरेज इट, काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया है। ओके, नाउ अब अच्छा, ये तो हम समझ गए कि कहाँ कहाँ पाई गई, कैसे कैसे हुआ। देखो इस डायग्राम से समझने में कितना इजी हो रहा है। यही सारी चीज़ें पीछे लिखी हुई हैं, बट मैं यहाँ डायग्राम से समझा रहा हूँ जिससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। नाउ एलुवियल सॉइल एज के बेसिस पे देखा जाए तो दो तरह की होती हैं। एक होता है हमारा ओल्ड एलुवियल, जो कि बांगर बोली जाती है, जिसमें कंकड़ होते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। ये थोड़ी सी कम फर्टाइल होती है, लेकिन फर्टाइल होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है। बट एज कंपेयर टू खादर, जो कि न्यू एलुवियल है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है।
एज कम्पेयर टू बंगर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में कितने सॉइल्स होते हैं? एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। एलुवियल बहुत फर्टाइल होती है। ब्लैक सॉइल जो होती है, ये जो होती है, ये डेक्कन रीजन में पाई जाती है, ठीक है, डेक्कन रीजन पाई जाती है और बेसाल्टिक रॉक्स के ऊपर। बेसाल्टिक रॉक कैसे? लावा से बनते हैं। रेड एंड येलो सॉइल ये जो होती है इग्नियस रॉक्स के ऊपर पाई जाती है, ये भी लावा से ही बनता है। और इसमें क्या होता है? रिच इन आयरन, आयरन रिच होती है, इसीलिए रेड सॉइल बोली जाती है। मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जिससे कि आप सबको एक आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं, ठीक है। इस तरह एरिड सॉइल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेजर्टेड होती है, हाफ डेजर्टेड कह सकते हो, पूरी डेजर्टेड नहीं, डेजर्टेड जो होती है लैंड वैसी नहीं, बट हाँ उससे थोड़ा सा कम कह लो एरिड सॉइल। यहाँ वेजिटेशन बड़ी मुश्किल से होता है। और फॉरेस्ट सॉइल का तो जो फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ सारी चीज़ें जिससे आप लोग को संतुष्टि मिल जाए। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल एंटायर नॉर्दर्न प्लेन में। देखो नॉर्दर्न प्लेन, हिमालयन रिवर लाइक इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स लेकर के आती हैं। एंड गुजरात थ्रू अ नैरो, इट गोज थ्रू गुजरात थ्रू अ। नाउ ये जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा गुजरात, हाँ राजस्थान एंड गुजरात में भी ये जाती है थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, एक नैरो कॉरिडोर से। अलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी के पास में। अभी मैंने उसमें शो किया था, जो मैंने चार्ट प्रिपेयर किया था, जो मैंने नोट्स टाइप एक माइंड मैप बनाया था। तो अगर माइंड मैप से पढ़ते हो तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें भी वही हैं कि इसमें कुछ प्रोपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का, ये थोड़ा सा नया है। एज यू मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। मैंने बताया था कि जब वहाँ से माउंटेन से, यहाँ से माउंटेन से नीचे आया और यहाँ पे ये पीडमॉन्ट जोन में आया, देखो पीडमॉन्ट जोन की बात किया है कहाँ पे, near the place of the break of slope the soil are coarse. Such soils are more common in Piedmont plain such as दुआर, चोजन, तेराई। इस रीजन को तेराई रीजन भी बोला जाता है। ये रीजन जो माउंटेन से उतरने के बाद जो स्लोप खत्म होता है जहाँ पे, ये वाला रीजन तेराई रीजन भी बोलते हैं, चौस रीजन या दुआर भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बताया ना बिगर इन साइज, जैसे जैसे आप वैली पे जाते जाओगे यहाँ पे बिगर रॉक्स मिलते जाएंगे आपको, और आगे जाते जाते आपको स्मॉलर रॉक्स भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बिगर रॉक्स को पहले ही रिवर छोड़ देती है और स्मॉलर रॉक्स को अपने साथ लेके बहा के चली जाती है। नाउ ये वाला मैंने समझा दिया, खादर बंगर। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, किसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है, कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, ये नया जान लेते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पोटैश है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है, विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ये ऐसी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, बाकी सब मैं बता दिया। नाउ ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। तो ब्लैक सॉइल के लिए भी मैंने प्रिपेयर कर रखा, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल बोलते हैं। यहाँ पे कॉटन ग्रो होता है इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी नाम दिया गया है। और इस ये जो है क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद पेरेंट ऑफ मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बनती कैसे है? ब्लैक सॉइल बनती है लावा से। लावा जब फ्रीज हो जाता है तो उसे, फ्रीज मतलब थोड़ा थोड़ा कूल सॉलिडिफाई होने लगता है, तो बस वही बनाता है बेसाल्ट, ठीक है। मैं टेक्स्ट से समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है और लावा से, लावा के फ्लो होने से बनती है। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड कृष्णा रीजन में पाई जाती है। मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, मतलब ये थोड़ा क्लेई होता है, इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, ये सब पाया जाता है। बस ये सब चीज़ें एलुवियल में भी पाई जाती हैं, बस फॉस्फोरस इसमें नहीं पाया जाता। और इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं गर्मी के टाइम में, जो कि इसमें पानी को अंदर जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा ब्लैक सॉइल का खत्म होता है। ब्लैक सॉइल में और कुछ नहीं, बट बुक पढ़ लेना एक बार। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल इस तरह से होती है, और इसमें जो फर्स्ट रेन होती है मानसून में, उसके बाद इसमें टिलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा सा ध्यान में रखना, चाहे माइंड में, चाहे आइदर इन योर नोट्स।
इट्स अप टू यू कि उसमें टिलिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर यहाँ पे कल्टीवेशन करना काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि लैंड पूरी मडी हो जाती है। ठीक है, और मैंने ये सब बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब पाया जाता है। नाउ मूव फर्दर, रेड एंड येलो सॉइल, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। नाउ आप एक बार नोट्स एक बार रिवाइज भी कर लेना बुक से, बुक लेके बैठोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा पढ़ने में। नाउ रेड एंड येलो सॉइल के बारे में आते हैं। रेड सॉइल रिच ड्यू टू आयरन, येलो हो जाती है तब जब इसमें पानी हो जाए, मतलब हाइड्रेटेड कर दिया जाता है। ईस्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, साउथ ऑफ गंगा प्लेन के सदर्न रीजन में। पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है। पीडमोंट जोन मैंने बताया हिमालयंस के बाद नीचे आते हैं तो जो स्लोप खत्म जहाँ होता है वो पीडमोंट जोन हो गया, प्लेन रीजन। तो वेस्टर्न घाट के पीडमोंट जोन में भी ये रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे आयरन बहुत होता है। ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से बनती हैं एंड लो रेनफॉल वाले रीजन में ये पाई जाती हैं। लेट मी चेक, कुछ ऐसा छूटा तो नहीं इसमें, बट आई डोंट थिंक कि कुछ छूटा है, सारी चीज़ें कवर्ड अप हो चुकी हैं। आयरन क्रिस्टाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पे ये बनती है, ये एक नया चीज़ थी। ओके, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, ये लेटर वर्ड से डिराइव है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स। ठीक है, लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे वेट और ड्राई दोनों सीजन अल्टरनेटिवली आता रहता है। बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से इसमें लीचिंग हो जाती है जो कि इसको इनफर्टाइल बना देती है एंड एसिडिक बना देती है लेटराइट सॉइल। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, डेफिशिएंट एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, some parts of West Bengal and Northeast region where these soil support deciduous and evergreen forest, मतलब यहाँ पे deciduous और evergreen forest होता है। It is humus rich but under sparse vegetation, है ना। एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट जब होता है तब क्या होता है, इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। ओके okay, now I am going to explain you, but first let me complete this paragraph. They are prone to erosion, मतलब उनमें लैंडस्लाइड्स, इरोजन्स वगैरह बड़ी जल्दी ही वो पानी पड़ता है तो बह जाती हैं एंड डिग्रेडेशन बहुत इजीली हो जाता है। अगर इस पे आफ्टर कुछ एडाप्टेशन किया जाए, अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, तो हिली एरिया जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, तो वहाँ टी एंड कॉफ़ी काफ़ी इजीली ग्रो किया जा सकता है। नाउ रेड लिटरेट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट्स। सो कैश्यू नट्स के लिए क्रॉप जो है कहाँ सुटेबल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला रीजन में, क्योंकि वहाँ पे रेड लेटराइट सॉइल्स पाई जाती है। रेड लेटराइट सॉइल क्यों, क्योंकि आयरन रिच होती हैं। नाउ मैं इसमें कुछ टर्म्स का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, लाइक यू नो आई नो दैट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, लाइक लेटराइट सॉइल पाई जाती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, तो वो क्या होता है, और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, तो वो मैं शो करने जा रहा हूँ कि see here, wait a minute, let me erase it, yeah, so here you can see that this is tropical zone and this is subtropical zone, means the area from 23.5 degree north and 23.5 degree south means Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the area between this contains tropical zone. And you can see easily that on the equator the temperature is 26 degrees Celsius, means more than 26 degrees Celsius, and on this Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn the temperature is also around 24 and 22 degree Celsius. So you can say that this region tropical zone consists of high temperature, but in subtropical zone from 23.5 degree north means Tropic of Cancer to Arctic Circle 66.5 degree north, that region is temperate zone or subtropical zone. This region is temperate or subtropical zone and same as in the southern region. So you can understand this easily from a diagram. Now let's come to the paragraph here. So I don't think that here some ऐसा कुछ बचा हो जो नहीं समझ में आया हो. Tropical subtropical region I have explained. Alternate wet and dry condition मतलब wet मतलब सूखा पड़, ड्राई मतलब सूखा पड़ जाना, एंड वेट मतलब फिर बारिश हो जाना, मतलब ये चीज़ चलती रहे, सूखा और बारिश, सूखा बारिश, ये होता रहे। लेटराइट सॉइल जो होती है एसिडिक हो जाती है, इसका पीएच वैल्यू 6.0 से कम हो जाता है, और भी ऐसी
सारी चीज़ें बाकी समझा दिया है मैंने. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू एरिड सॉइल्स. एरिड सॉइल्स का, इन एरिड सॉइल्स, for arid soil I gonna open again that picture in which you can easily understand what is arid soil. Arid soil is generally red to brown in color. It is, you can see here, red to brown in color. Sandy and saline means वो रेतीली और काफ़ी नमकीन होती है. जब अगर गर्मियों में क्या होता है, कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दे तो इसमें से नमक भी निकाला जा सकता है अलग करके. ड्राई क्लाइमेट में होती है, हाई टेम्परेचर होता है एंड लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर इसमें नहीं होता. It consists of कंकड़, इसमें एक वेट सेकंड, या इट कंसिस्ट ऑफ कंकड़, कैल्शियम इन लार्ज लेयर्स. इसमें क्या है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेयर में होती है और ये लेयर बना देती है. लेयर बनाने से इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द सॉइल. मीन्स इफ यू कैन सी दैट दिस इज अ सॉइल, सो दैट कैल्शियम फॉर्म्स एन अपर लेयर एंड इससे क्या होता है, वाटर इनसाइड नहीं जा पाता, वाटर सिर्फ यहीं रह जाता है. तो इट मेक्स, इट डज नॉट लेट द वाटर गो इनसाइड द सॉइल. सो इससे भी लैंड जो होती है काफ़ी ख़राब हो जाती है और सेलाइन बन जाती है, एसिडिक हो जाती है. वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल पाई जाती है. राजस्थान की सॉइल को हर कोई अच्छे से जानता है. नाउ लेट्स कम टू द फॉरेस्ट सॉइल. इसी के बाद है वो हम पढ़ेंगे. आप लोग बुक में मैच करवा सकते हो, सारे पॉइंट्स कवर्ड कर दिए गए हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू शुड जस्ट लिसन व्हाट आई एम saying and understand. Forest soil are found in hilly and mountainous areas. It has rain and forest availability, मतलब रेन और फॉरेस्ट वहाँ पे होती है. लूमी सल्टी वैलीज में, लूमी सल्टी मतलब थोड़ी सी रेतीली और लोमी सॉइल होती है. कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स. अपर स्लोप मतलब कि जैसे ये स्लोप बन रहा है अपना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपर स्लोप, यहाँ पे खुरदुरे मिनरल्स पाए जाएंगे, क्योंकि बताया गया है ऊपर से जब आता है तो यहाँ पे मिनरल्स को डिपॉजिट करता है. तो अपर स्लोप्स में यहाँ पे इसको कोर्स ग्रेन्स मिल जाते हैं. एंड स्नोई एरियाज में क्या होता है, डेन्यूडेशन, लो ह्यूमस नहीं होता इसमें और ये एसिडिक बन जाती है. और डेन्यूडेशन होता है मतलब ये टूटने लगती है, अलग अलग होने लगती है. फाउंड इन लोअर पार्ट्स, मतलब लोअर पार्ट्स में, ऑन रिवर टेरेसेस में भी पाई जाती है, रिवर के लोअर पार्ट्स में भी पाई जाती है. ये वाला जो लोअर पार्ट होता है यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है. ओके, सो हियर सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. क्या सॉइल इरोजन एंड सॉइल मीन्स क्या मतलब होता है सॉइल इरोजन का, सॉइल कंजर्वेशन का? मीन्स denudation and soil cover of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. मतलब कि ये जैसे सॉइल यहाँ पे क्या हो रही है, इरोड हो रही है ना, सॉइल को यहाँ पे पानी के साथ बहती जा रही है सॉइल, तो दिस इज नोन एज denudation और दिस इज नोन एज washing down of so washing down of soil is known as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. मतलब कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन होता है और सॉइल इरोजन होता है ये सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, इट गोज ऑन, मीन्स बनती भी है और ख़त्म भी होती है. बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब सॉइल फॉर्मेशन बहुत कम हो चुका है एंड सॉइल डेन्यूडेशन ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि सॉइल अब बन नहीं पा रही है क्योंकि ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा नेचर को अफेक्ट किया है. सो इससे सॉइल इरोजन बढ़ते जा रहे हैं. सॉइल इरोजन में क्या होता है, जब रिवर वाटर कट करता है क्लेई सॉइल्स को, जैसे इस तरह से ये कट करता जा रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं गलीज बनती हैं. ये हो रही गलीज का फॉर्मेशन. और चंबल रीजन में इसको नाम दिया जाता है रेवाइंस. इसी गली को नाम दिया जाता है, इसी के अलग अलग नाम है, रेवाइंस. एंड इसको बैड लैंड भी बोला जाता है. जब ऊपर की लेयर निकल जाए, जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं ना कई लेयर्स होती हैं, जब ऊपर की लेयर वॉश अवे हो जाए तो बोलते हैं उसे शीट इरोजन बोला जाता है, शीट इरोजन. विंड जो है लूज सॉइल को बहा ले जाती है अपने साथ और विंड इरोजन भी होता है इससे. नाउ विंड इरोजन मतलब जब सॉइल बहा ले जाए तो सॉइल मतलब कि शीट इरोजन मतलब ऊपर की लेयर जब ये वॉश अवे हो जाए तो शीट इरोजन. जब विंड इसको ले जाए उड़ा के ऊपर की लेयर को वॉश अवे कर दे तो बोलते हैं विंड इरोजन.
सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अगर फार्मिंग सही तरीके से नहीं की जाती है तो भी सॉइल इरोजन होता है, लाइक गलत तरीके से प्लफिंग करना, अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स ऑफ द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। मतलब कि इन एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई लैंड है, ये है हमारी लैंड है, ठीक है, और ऊपर माउंटेन या मतलब हिली रीजन है और नीचे प्लेन्स है। तो जब हम अगर हम लोग लैंड को इस हिसाब से डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसे स्लोपी एरिया में करते हैं, तो पानी इस चैनल के थ्रू आ जाएगा और पूरी सॉइल को बहा ले जाएगा। बट अगर हमारे पास ये लैंड है, ऊपर का रीजन हायर रीजन है, नीचे का लोअर है, तो हम अगर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बीच में ग्रिड्स बना देते हैं मिट्टी के, तो सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगा दें तो सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। तो प्लफिंग का सही तरीका होना चाहिए, अदरवाइज वो दिक्कत करता है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लफिंग, इसको बोलते हैं काउंटर प्लफिंग। नाउ स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस। अब जैसे चाय की पत्ती की फार्मिंग होती है, टी फार्मिंग, तो वहाँ पे स्टेप्स बना दिए जाते हैं, सीढ़ी जैसे होती है, वहाँ पे चाय की पत्तियाँ लगी होती हैं ऐसे, इस तरह से चाय की पत्तियाँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो होता है दैट इज नोन एज टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं, है ना, मेकिंग टेरेसेस। और टेरेस फार्मिंग भी बोला जाता है हिमालयस में, ठीक है, वही सेम चीज़ है। काउंटर प्लफिंग है अलग चीज़, जहाँ पे आप जो है सॉइल को मतलब कि वाटर को काउंटर करते हो, वाटर फ्लो ना होने पाए इसलिए ऐसे ऐसे ये बीच में लगा देते हो छोटे छोटे प्लांट्स। बट स्टेप या टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, आप टेरेसेस बनाते हो, मतलब एक सीढ़ियाँ जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है और यहीं पे इसी में जो है आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं, इसमें आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, मतलब आपने यहाँ पे देखो छोटे छोटे ग्रासेस छोड़ दिए हैं, है ना, जिससे कि क्या हो, वो मिट्टी को पकड़े रहें और जो एयर आए तो उसको रोके रहें, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इससे होता क्या है, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, इससे विंड का फोर्स कम हो जाता है। एंड दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, मतलब स्ट्रिप्स बना दिया। ओवरऑल सारी चीजें बेस्ड उसी पे हैं, ठीक है, बस अलग अलग फॉर्म में है। जब स्टेप के फॉर्म में है तो टेरेस फार्मिंग बोल दिया, जब ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है वाटर, जैसे बताया था ना मैंने, भी समझ तो गए, तो उसे काउंटर प्लफिंग बोल दिया। और जब यहाँ पे स्ट्रिप बनाया हमने, छोटी छोटी ग्रासेस ग्रो किया, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग बोल दिया। और अगर हम लोग ने पेड़ लगा दिए, प्लांट कर दिए, ट्रीज, एक बड़ा सा बेल्ट बना दिया, तो उसे बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, जिससे कि बहुत तेज अगर विंड आ रही है तो भी हमारी लैंड सेफ रहेगी, हमारी क्रॉप्स सेफ रहेगी। ऐसे बेल्ट्स बना देने से सैंड ड्यून्स स्टेबलाइज हो जाते हैं, मतलब जो रेतीली एकदम तूफान आंधी आते हैं वो सब भी कंट्रोल कर लेती है हमारी लैंड। सो दिस वाज आवर चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ सजेस्ट मी जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए हो इसमें, और आपको वो वाले नोट्स के तरीके से चाहिए या नहीं चाहिए जो मैंने बीच में दिखाए थे, एलुवियल सॉइल और अलग अलग सॉइल्स का माइंड मैप्स तरह, तो कैसे समझना है ये आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।